Hello guys, I welcome you all to the day 133 of our series, and in today's session we are going to continue the conversion from active to passive in case of past continuous tense. Now let's move forward. Here was your yesterday's task. So let's go through it first. Here you were supposed to complete the sentences. I'm afraid I lost track of debit card payments because I forgot to write them down when I get my monthly bank statement. When I get my monthly bank statement, I can see all the transactions. Next is I keep a reasonable amount of money in my dash account, in my current account. Just enough to keep it in credit. But I put most in a savings account. Savings, or you can say deposit account, where I get more interest. Next is I didn't keep track of my outgoings this month, and now I am in the red, or I am in debt. Next is I'm the sensible one with money, very thrifty. My brother isn't. He is very extravagant. Now here is your next exercise. Did you take some money out? Yes, I withdrew. Yes, I withdrew £100. Is there money in your account? No, I'm afraid I'm overdrawn. I am overdrawn. Next is, do you know what you spend? Yes, I keep a record of all my outgoings. Next is, have you spent too much this month? Yes, and now I have got an overdraft. Next is, do you always pay credit card bills? Yes, otherwise debts can mount up. Mount up, or you can also write build up. Next is, does he spend his money carefully? No, he squanders. Squander is our appropriate verb, and as we know that he is a singular subject, that's why we need to put singular verb as well. So he squanders most of it. And here is your next exercise. यहाँ पे आपको पैसिव में कन्वर्ट करना था, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. जब मैं घर आई तब यहाँ क्या किया जा रहा था? दो सेंटेंसेस हैं. जब ये हुआ तब ये हो रहा था. तो दो सेंटेंसेस दोनों को हम लिखते हैं. आपकी मर्जी है, आप पहले इस सेंटेंस को भी नोट डाउन कर सकते हो और पहले बाद वाले को भी लिख सकते हो. तो ये हो जाएगा, when I returned or came back home. फर्स्ट सेंटेंस हो गया. तब यहाँ क्या किया जा रहा था? What was being done here at that time? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. When I returned or came back home, what was being done here at that time? नेक्स्ट है, जब हमने वो चीख सुनी तब पार्टी की जगह को लेकर बातचीत हो रही थी. चीख यानी कि स्क्रीम, और पार्टी की जगह यानी कि वेन्यू फॉर द पार्टी. तो ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से. When we heard that scream at that time
एट दैट टाइम आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो और एंड में भी। एट दैट टाइम पार्टी की जगह को लेकर बातचीत हो रही थी, तो ये हो जाएगा द डिस्कशन was being done related to the venue for the party। तो ये हो गया। ये भी पॉसिबल है कि आपने किसी और तरह से सेंटेंस को फॉर्मुलेट किया हो, लेकिन बस ध्यान देने वाली बात यही है कि जो सेकंड पार्ट था, पार्टी की जगह को लेकर बातचीत हो रही थी, वो हमारा पैसिव में आना था। यहाँ पे बीइंग प्लस V3 हमें लगाना था। तो देखिए यहाँ पे हो गया बीइंग डन, कि वो हो रही थी उस टाइम पे बातचीत। नेक्स्ट में आते हैं, जिस समय खिड़की टूटी। टूटने के लिए हम ये वर्ब यूज करते हैं ब्रेक, और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी ब्रोक। उस समय गली में क्रिकेट खेला जा रहा था, तो ये हो जाएगा when the window broke, when the window broke, at that time और क्रिकेट खेला जा रहा था, the cricket was being played और गली में, तो ये हो जाएगा in the street। तो यहाँ पे जो पैसिव वर्जन है वो सिर्फ सेकंड वाले सेंटेंस में आएगा, और फर्स्ट में खिड़की टूटी when the window broke। नेक्स्ट है, जब अस्पताल में मुझे होश आया तब मेरा ऑपरेशन किया जा रहा था। तो होश आना, इसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। देखिए होश के लिए वर्ड यूज होता है कॉन्शियसनेस, ये होता है, और होश आना यानी कि गेन कॉन्शियसनेस, ये फ्रेज यूज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। When I gained consciousness in the hospital, in hospital, उसके बाद में मेरा ऑपरेशन किया जा रहा था। At that time I was being operated upon, I was being operated upon, कि मेरा ऑपरेशन किया जा रहा था। और यहाँ पे ये जो अपॉन हमने ऐड की है, सेंटेंस के एंड में भी हम प्रपोजिशन को लगा के छोड़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अब देखिए ऑपरेट के साथ में हमेशा ही ऑपरेट ऑन समबडी, ऑपरेट अपॉन समबडी, ये प्रपोजिशन हम यूज करते हैं। तो ये फिक्स है, ये इसके साथ में अटैच्ड होती है, इस वजह से हमें यहाँ पे लगानी पड़ी है, अदरवाइज हम नहीं लगाते। नेक्स्ट में आते हैं, तूफान रुकने के बाद लोगों को बचाया जा रहा था। तो यहां हो जाएगा लोगों को बचाया जाना यानी कि रेस्क्यू, ये हो गई हमारी वर्ब, मेन वर्ब। तो तूफान रुकने के बाद, ये आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, एंड में भी लगा सकते हो। तो मैं यहां पे इस तरह से करती हूं, द पीपल वर बीइंग रेस्क्यूड, द पीपल वर बीइंग रेस्क्यूड, तूफान रुकने के बाद। आफ्टर द हरिकेन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं अभी, जब मैं थिएटर पहुंची तब फिल्म दिखाई जा रही थी। When I reached the theater, तब फिल्म दिखाई जा रही थी। At that time the film was being, और यहाँ पे मेन वर्ब है हमारी शो, शो की थर्ड फॉर्म हो जाती है शोन। The film was being shown। नेक्स्ट है, सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ा जा रहा था। तो ये हो जाएगा, देखिए चाय की चुस्कियां,
सिप ऑफ टी, तो इसे हमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा द न्यूज़पेपर was being read। देखिए रीड के केस में तीनों फॉर्म्स में स्पेलिंग सेम होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है। फर्स्ट फॉर्म की होती है रीड, सेकंड और थर्ड में हो जाएगा रेड, रेड। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से बोलेंगे, द न्यूज़पेपर वाज बीइंग रेड, यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा था। अर्ली मॉर्निंग along with यानी कि के साथ, along with the sip of tea या the sips of tea, ये हो गया। नेक्स्ट है, रात को स्टडी रूम से आवाज आ रही थी, टाइपराइटर पर कुछ टाइप किया जा रहा था। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों डिफरेंट है। अब यहाँ पे दोनों को अलग अलग किया गया है इससे पूर्ण विराम से, तो हम भी इसी तरह से करेंगे। रात को स्टडी रूम से आवाज आ रही थी, वॉइस और वॉइसेस, सिंपल हम वॉइस लिखते हैं, वॉइस was coming out of the study room last night। और नेक्स्ट है, टाइपराइटर पर कुछ टाइप किया जा रहा था, something was being typed, something was being typed। अब ये आपकी मर्जी है, आप ऑन टाइपराइटर ये लिखो या ना लिखो। अब जैसे वही केस आ गया, ये टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा था, ऑब्वियस है कि पढ़ाएगा तो टीचर ही, तो वहां पे वी आर टॉट बाय टीचर लिखने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं रहती, तो वही है, वॉज बीइंग टाइप्ड के बाद में ऑन टाइपराइटर लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती। नेक्स्ट है, जब गिलास टूटा तब बर्तन साफ नहीं किए जा रहे थे बल्कि शरबत बनाया जा रहा था। तो ये हो जाएगा, when the glass broke at that time बर्तन साफ नहीं किए जा रहे थे। बर्तन साफ करने के लिए हम ये फ्रेज यूज करते हैं, do the dishes। तो यहाँ पे हो जाएगा, the dishes were not being done। देखिए क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सेंटेंसेस हमारे पैसिव में है, कंटिन्यूअस पैसिव में, पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव में है दोनों ही। तो जब ग्लास टूटा तब बर्तन साफ नहीं किए जा रहे थे, द डिशेज वर नॉट बीइंग डन। नेक्स्ट क्या था, बल्कि को हम लिखते हैं इंस्टेड, बल्कि शरबत बनाया जा रहा था। द ड्रिंक और द कोल्ड ड्रिंक was being made, the cold drink was being made, ये हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस है, मेरी निगरानी में बच्चे का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा था। निगरानी, इसके लिए हम ये वर्ब यूज करते हैं सुपरविजन। तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे, मेरी निगरानी में, तो ये हो जाएगा अंडर माय सुपरविजन। Under my supervision, the child or the kid was being taken care of। और अब यहाँ पे भी देखिए सेंटेंस एंड हो रहा है प्रपोजिशन से। प्रपोजिशन से हम एंड तब करते हैं जब ये जो कोई भी वर्ब है हमारी, उसके साथ में फिक्स्ड प्रपोजिशन ऐड होती ही है, हमेशा उसके साथ में कोई प्रपोजिशन रहती ही है। अब जैसे केयर के साथ में हमेशा ऑफ रहता है, टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, हमेशा ये होगा, टेक केयर दैट पर्सन हम डायरेक्ट नहीं बोलते। तो इस वजह से क्योंकि टेक केयर के बाद में ऑफ हमेशा आता है, तो यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे, बेशक उसके बाद में फिर एंड में यहाँ कोई हमारा सब्जेक्ट हो या ना हो, क्योंकि यहाँ पे पैसिव था तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने ऐड कर दिया था टेक केयर ऑफ चाइल्ड, या फिर द चाइल्ड वाज बीइंग टेकन केयर ऑफ। तो चलिए अभी नेक्स्ट में आते हैं।
तो यहाँ से हमारा आज का सेशन स्टार्ट हो रहा है। अब जल्दी से आप यहाँ पे भी वीडियो को पॉज करिए और इन सभी सेंटेंसेस को ट्राई करिए कन्वर्ट करने का। आई एम श्योर आपने कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कपड़े धोए जा रहे थे तब रसोई में कौन था? तो ये हो जाएगा when the clothes were being washed, or who was in the kitchen at that time, और एंड में क्वेश्चन मार्क। when the clothes were being washed, who was in the kitchen at that time। नेक्स्ट है जब बम धमाका हुआ तब स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। ये हो जाएगा, अच्छा बम धमाका, बॉम्ब एक्सप्लोजन, और धमाका हुआ इसे एज अ वर्ब यूज किया गया हो तो वहां पे एक्सप्लोड, इसकी पास्ट फॉर्म हो जाएगी एक्सप्लोडेड। तो ये इस तरह से कुछ बनेगा। चाहे आप इसको इंडिपेंडेंस डे वाले केस को पहले लिख लो, चाहे आप इसको बाद में लिख लो, दोनों ही करेक्ट होंगे। तो ये मैं इस तरह से नोट डाउन कर रही हूं यहाँ पे, इंडिपेंडेंस डे was being celebrated, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था जब बम धमाका हुआ। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट when the bomb exploded। नेक्स्ट है लोगों के फिर से ठीक होने के लिए पूजा की जा रही थी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रेयर्स या प्रेयर, इसको आप सिंगुलर में भी लिख सकते हो, प्लूरल में भी। तो प्रेयर was being performed, प्रेयर के लिए हम हमेशा ही परफॉर्म इस वर्ब को यूज करते हैं। सो प्रेयर वाज बीइंग परफॉर्म्ड, और किसके लिए की जा रही थी? लोगों के फिर से ठीक होने के लिए। तो देखिए फिर से ठीक होने के लिए यानी कि रिकवर, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, प्रेयर वाज बीइंग परफॉर्म्ड फॉर द रिकवरी ऑफ द पीपल। हो सकता है आपने किसी और तरह से बनाया हो, बस ध्यान ये रखना कि पैसिव इस स्ट्रक्चर में आया हुआ था। यहाँ पे सेकंड पार्ट में प्रेयर वाज बीइंग परफॉर्म्ड, और यहाँ पे मेन वर्ब जो हमारी थी वो थी रिकवर, और इसे हमने नाउन बना दिया द रिकवरी। नेक्स्ट है जब मैं कॉलेज पहुंची तब वहां गाना शूट किया जा रहा था। When I reached my college, at that time गाना शूट किया जा रहा था। The song was being shot। देखिए ये होता है शूट, SHOOT, शूट, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। शॉट सेकेंड और थर्ड में सिंगल ओ रहेगा, शॉर्ट ये रहती है सेकेंड और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग, और फर्स्ट में डबल OT आ जाता है। तो ये हो जाएगा was being shot। नेक्स्ट में आते हैं डायरेक्ट। अब फिर से यहाँ पे आप स्क्रीन को पॉज करिए, अपना एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दीजिए और देखिए कि आप अभी भी क्या गलती कर रहे हो या फिर अभी तक आपके सारे सही होने लग गए हैं। करिए स्टार्ट। आई एम श्योर आपने कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मुझे लगातार घूरा जा रहा था। I was continuously being stared at। तो यहाँ पे भी stare के साथ में at फिक्स्ड प्रपोजिशन है, तो इसको हम यहाँ पे भी रखेंगे। तो घूरना यानी कि stare at somebody, तो मुझे घूरा जा रहा था, I was being stared at, और उसके बाद में क्या है, तभी मुझे गुस्सा आ गया। That's why I got angry।
तो ये था हमारा कंप्लीट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस में आते हैं। हमारी सेना पर पत्थर मारे जा रहे थे और मीडिया चुप थी। तो यहाँ पे भी इस सेंटेंस को भी आप पहले लिख सकते हो और इसको भी आप पहले लिख सकते हो। आप सेना से भी स्टार्ट कर सकते हो, पत्थर मारे जा रहे थे इस एक्शन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। कितने ही कन्वर्जन इसके पॉसिबल हैं, तो उनमें से एक मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा स्टोन्स वर बीइंग थ्रोन एट आवर आर्मी। और उसके बाद में और से अटैच कर रखा है, और मीडिया चुप थी, एंड the media were silent. The media was आप नहीं करोगे, यहाँ पे were होगा क्योंकि मीडिया ये अपने आप में प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन होता है, इसका सिंगुलर नाउन हो जाता है मीडियम से बनता है मीडिया, तो ये प्लूरल है इस वजह से हो जाएगा the media were silent. नेक्स्ट में आते हैं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री द्वारा शांति के लिए भाषण दिया जा रहा था और दूसरी तरफ दोनों सेनाएं युद्ध कर रही थी। काफी लेंथी सेंटेंस बनेगा, बहुत सारे तरह की फॉर्मेशंस पॉसिबल हैं, जिनमें से एक मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। देखिए, एक तरफ दूसरी तरफ, तो इनको हम बोलते हैं ऑन वन हैंड, ऑन द अदर हैंड। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा ऑन वन हैंड द स्पीच फॉर पीस, शांति के लिए, और पीस की स्पेलिंग ध्यान रखना, PEACE ये होता है शांति, और PIECE वो होता है टुकड़ा। द स्पीच फॉर पीस was being delivered। स्पीच ही केस में हम गिव वर्ब से बेटर डिलीवर को यूज करते हैं। गिव द स्पीच देखिए वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन डिलीवर द स्पीच ये परफेक्ट है। द स्पीच फॉर पीस वॉज बीइंग डिलीवर्ड, और उसके बाद में हो जाएगा बाय आवर PM, while on the other hand both the armies were battling। या फिर both the armies were on the war, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। डायरेक्ट नेक्स्ट में आती हूँ मैं। जब मैं कक्षा में पहुंची तब एक बच्चे को पीटा जा रहा था। तो यहाँ पे सेकंड जो पार्ट है इसमें बनेगा हमारा पैसिव वर्जन। ये हो जाएगा जब मैं कक्षा में पहुंची, when I reached the class, और when I went to the class, तब एक बच्चे को पीटा जा रहा था। A student, a kid, a child कुछ भी हो सकता है। A kid was being beaten at that time। A kid was being beaten at that time। लास्ट है, कल जब डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंची तब पेशेंट को स्ट्रेचर पर लाया जा रहा था। तो ये हो जाएगा when the doctor reached the hospital yesterday। और अब ये जो yesterday सेंटेंस के बीच में नहीं है, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो तो कंप्लीट हो ही गया ना हमारा। when the doctor reached the hospital, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इस सेंटेंस के एंड में है yesterday। अब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है यहां से, a patient was being brought on the stretcher। brought की फर्स्ट फॉर्म होती है bring, यानी कि लाना। तो bring से हो जाएगा brought was being brought on the stretcher। तो ये सारे एग्जांपल्स थे। आई गेस एक एग्जांपल हमारा प्रीवियस स्लाइड में रह गया,
इसको करते हैं। मुझे बार बार ताने मार के परेशान किया जा रहा था। ताने मारना, टू कमेंट, या फिर टू टॉन्ट, ये भी यूज किया जा सकता है, TAUNT। और ये जो टॉन्ट है ये इंग्लिश टर्म है अपने आप में। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, I was being, अब यहाँ पे था मुझे परेशान किया जा रहा था। परेशान के लिए आप बहुत सारे वर्ड्स को यूज कर सकते हो। आप सिंपल ये भी बोल सकते हो I was being disturbed, और disturbed के अलावा आप ये भी यूज कर सकते हो troubled, I was being troubled। इसके अलावा ये भी यूज हो सकता है I was being irritated, और I was being annoyed, I was being annoyed। और उसके बाद में by the constant taunts, बार बार यानी कि constant, by the constant taunts, और by the constant comments, दोनों हो सकते हैं। तो सारी एक्सरसाइजेज हमारी हो गई आज। अभी आते हैं लास्ट सेगमेंट में, डिस्कस टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम देखेंगे कुछ फ्रेजेस को, कुछ वर्ड्स को। सबसे फर्स्ट फ्रेज है जॉट समथिंग डाउन। इसके लिए हम एक और फ्रेज भी यूज करते हैं, दैट इज पेन डाउन। और पेन डाउन का मीनिंग ये नहीं है कि पेन नीचे रख दो। पेन डाउन का मीनिंग ये है कि पेपर के ऊपर पेन चलाओ, यानी कि नोट डाउन करो क्विकली। सो राइट समथिंग क्विकली, उसके लिए हम ये फ्रेज यूज करते हैं जॉट समथिंग डाउन। जॉट डाउन द पॉइंट्स, यानी कि क्विकली अभी पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करो। जॉट डाउन द पैराग्राफ लाइंस, पैराग्राफ बनाओ लाइंस को जोड़ के, फटाफट लिख के। नेक्स्ट है बेसिस। बेसिस का आपको मीनिंग पता है, आधार होना है किसी चीज का, या फिर अ पर्टिकुलर वे इन विच समथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड और डन। कोई भी चीज किसी तरह से ऑर्गेनाइज की गई है, उसके लिए भी हम ये वर्ड यूज कर लेते हैं बेसिस। जैसे ऑन अ डे टू डे बेसिस, यानी कि डेली के बेसिस पे, डेली के लिए जो चीज ऑर्गेनाइज की गई है। ऑन अ डेली, वीकली या रेगुलर बेसिस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हम ये वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज यानी कि आपके कोई भी काम है, कोई भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सबको एक लिस्ट में लिखना, और उस लिस्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको टॉप मोस्ट रखना, और उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से इन सारे पॉइंट्स में इंपॉर्टेंस वाइज लिखते जाना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट पे और लीस्ट इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट में हो उस लिस्ट के। तो इसको हम बोलते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को, टू प्रायोरिटाइज आवर एक्टिविटीज, टू प्रायोरिटाइज आवर प्रॉब्लम्स, आवर इश्यूज। लेकिन इस लिस्ट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रायोरिटी लिस्ट। टॉप प्रायोरिटी जो सबसे ऊपर हो, लो प्रायोरिटी जो सबसे नीचे हो। और प्रायोरिटी का हिंदी में मीनिंग होता है प्राथमिकता। नेक्स्ट है रुथलेसली, यानी कि स्ट्रॉन्ग तरीके से, कठोर तरीके से। फर्म का भी यही मीनिंग होता है, स्ट्रॉन्ग इन अ डिटर्मिन्ड वे, यानी कि मैंने सोच लिया है वो काम करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी ही प्रॉब्लम्स आए। दैट मीन्स यू आर बिहेविंग इन अ रूथलेस वे, यू आर बिहेविंग रूथलेसली। नेक्स्ट है अकम्प्लिश समथिंग, किसी काम को पूरा करने में सक्सेसफुल हो जाना, वहां पे इस वर्ब को यूज किया जाता है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश इज अ वर्ब, इसकी नाउन फॉर्म हो जाएगी अकम्प्लिशमेंट, मेंट सफिक्स लग जाएगा बाद में। और इसके लिए हम ये वर्ड भी यूज कर लेते हैं अचीव समथिंग। नेक्स्ट है स्टिक टू समथिंग। स्टिक टू समथिंग यानी कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आप किसी चीज पे डटे रहो। कोई अगर आपने लिस्ट बनाई है कि मुझे इस लिस्ट को फॉलो करना है, और जो आपने यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे काम रखा है कि सबसे पहले इसी काम को करना है, फिर सेकंड वाले काम पे आना है, फिर थर्ड पे जाना है, इसी तरह से ये ऑर्डर मुझे फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली अगर आप इसको फॉलो करते हो, दैट मीन्स यू आर स्टिकिंग टू दैट प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ योर्स। और स्टिक टू समथिंग हो गया, स्टिक टू समबडी भी हो सकता है, यहाँ पे किसी पर्सन की बात भी हो सकती है, यानी कि चाहे कितनी डिफिकल्टीज आए, आप उस पर्सन के साथ में बने हुए हो, उसको छोड़ के नहीं जा रहे, वहां पे हम स्टिक टू समबडी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं एंटिसिपेट। एंटिसिपेट होता है आशा रखना। एंटिसिपेटरी बिल आपने सुना होगा,
तो वो वही है कि हमें आशा है कि हमारी ये जो मांगे हैं वो मंजूर की जाएंगी। तो एंटिसिपेट आशा रखना, एक्सपेक्ट करना, एक्सपेक्ट समथिंग विल हैपन एंड प्रिपेयर फॉर इट। तो इसका नाउन फॉर्म हो जाता है हमारा एंटिसिपेशन, TION, के नाउन सफिक्स है। नेक्स्ट है शेड्यूल समथिंग। शेड्यूल यानी कि अरेंज करना प्रॉपर टाइम के साथ में कि इस टाइम पे ये होना है, इस टाइम पे ये होना है, इस टाइम पे ये एक्टिविटी हमें चाहिए, तो वो हो जाता है हमारा शेड्यूल समथिंग। और शेड्यूल को एज अ नाउन भी यूज किया जा सकता है और सेम स्पेलिंग में एज अ वर्ब भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है डेलीगेट समथिंग। अब डेलीगेट यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है और एज अ वर्ब जहां पे भी डेलीगेट को यूज किया जाता है दैट मीन्स आप अपने जूनियर को कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, अपना काम दे रहे हो जो आपको करना था एक्चुअल में, लेकिन आप उसको दे रहे हो करने के लिए। गिव पार्ट ऑफ योर वर्क टू समबडी, स्पेशली समबडी इन अ लोअर पोजीशन। और लास्ट है हमारा रिगरस, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, और सीवियर, सीवियर यानी कि एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्रिक्ट, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं रिगरस। इसके लिए एक और वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, दैट इज रोबस्ट। तो अभी आते हैं नेक्स्ट में, नो मैटर व्हाट या फिर व्हाट एवर, ये भी कहा जाता है। देखिए आपने हिंदी में ये सुना होगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसी फ्रेज को इंग्लिश में रिफ्रेज किया जाता है एज नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पे देखिए नो मैटर व्हाट हैपेंस डोंट पैनिक, डोंट पैनिक मीन्स परेशान मत हो। नेक्स्ट है व्हाट एवर हैपेंस डोंट पैनिक, चाहे कुछ भी हो जाए परेशान मत होना। You will find work no matter where, अब where को भी हम यूज कर लेते हैं no matter what की बजाय no matter where, और what यानी कि कुछ भी हो जाए, और where no matter where यानी कहीं पे भी। You will find work no matter where you are, तुम कहीं पे भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम काम को ढूंढ लोगे। So wherever you are, so इसी तरह से wherever चाहे कहीं भी, whatever चाहे कुछ भी, और एक और वर्ड होता है that is whenever, whenever कभी भी। और एक और फ्रेज हम यूज करते हैं come what may, come what may, इसको भी इसी तरह से यूज किया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल I'll always be there for you come what may, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। He will never leave you come what may, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए come what may। तो अभी इस पे आते हैं हमारे पैसेज पे। टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर होता है वेरियस क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, आपको उनके आंसर्स देने होते हैं। डू यू जॉट डाउन अ लिस्ट ऑफ जॉब्स टू डू ऑन अ डेली बेसिस, यानी कि क्या आप अपने डेली बेसिस पे जो जॉब यानी कि यहाँ पे डेली बेसिस के जो काम है उनकी बात हो रही है कि क्या आप उन कामों को जॉट डाउन करते हो एक लिस्ट में आप लिखते हो उन कामों को ऑन अ डेली बेसिस एंड देन प्रायोरिटाइज देम, और फिर उनको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करते भी हो। नेक्स्ट है डू यू प्रायोरिटाइज रूथलेसली, यानी कि आप स्ट्रांगली, आप फर्मली क्या उनको प्रायोरिटाइज करते हो। डिसाइडिंग विच टास्क यू हैव टू अकम्प्लिश दैट डे, कि आप अपने पूरे हफ्ते का शेड्यूल बना रहे हो और कौन से दिन पे आपको कौन सा काम करना है, कि क्या आप इतने रूथलेसली, इतने स्ट्रांगली, इतने फर्मली उस लिस्ट को प्रिपेयर करते हो। नेक्स्ट है डू यू स्टिक टू योर प्रायोरिटीज, क्या आप अपनी प्रायोरिटीज जो लिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंग मतलब चिपके रहते हो, कि आप वैसे ही उसको फॉलो करते हो नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी डिफिकल्टी आए। नेक्स्ट है डू यू ट्राई टू एंटिसिपेट सो दैट यू कैन शेड्यूल योर टास्क बेटर, क्या आप कभी कुछ चीजें एक्सपेक्ट भी करते हो किसी से और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल बेटर तरीके से आप बना सको। नेक्स्ट है डू यू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज फार एज पॉसिबल, या फिर आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको टालते रहते हो जहां तक पॉसिबल हो सके। डू यू सेट योर सेल्फ रिग्रेस टाइम लिमिट्स फॉर टास्क एंड स्टिक टू देम, क्या आप अपने लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट और सीवियर टाइम लिमिट्स रखते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टास्क अगर करना है तो ये जैसे इतने बजे तक, ये 5 बजे तक हो जाना चाहिए हर हाल में, तो ये क्या है रिग्रेस टाइम लिमिट आपने सेट कर दी है। तो क्या आप अपने कामों के साथ में ऐसा करते हो। तो यहाँ पे हमने सारे वर्ड्स और सारी फ्रेजेस को यूज कर लिया है और ये आपका टास्क रहेगा, इसको आपको कंप्लीट करना है। और इसके अलावा
आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इसको भी रिवाइज करना है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम इसी को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे. सो गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग.